Hello students, in the previous video we have read about the Newton's third law of motion. Now we will come to the conservation of momentum. Before this we discuss about an example of the Newton's third law of motion. This will help us to understand the conservation of momentum. Okay, suppose we take two balls, ball 1 and ball 2, and both the balls are coming close. So ball 1 is exerting the force on the ball 2, and ball 2 is applying the force on the ball 1, and both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. So we can write it in this way: F12 is equal to minus of F21. Here F12 indicates that फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2. ओके, हमने F12 इस साइड पे लिखा है बिकॉज द मीनिंग ऑफ F12 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 तो लगा रहा है लेकिन किस पर, 2 पर. फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2 एंड द मीनिंग ऑफ F21 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1. Okay, and according to Newton's third law of motion we know that both the forces action and reaction आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. यहाँ जो माइनस का साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. आप एरो भी देख सकते हो, एक का एरो इधर है, एक का एरो इधर है. सो बोथ द फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Now we will start the conservation of linear momentum. Okay, conservation of linear momentum means that momentum will remains conserved, that is the momentum that was earlier will remains the same later. This is possible only when there is no external unbalanced force act on it. Okay, now suppose two balls A and B. We are taking two balls A and B and the initial velocity of the ball is UA and UB. Okay, and we consider that the velocity of ball A is greater than the velocity of B. UA is greater than UB. Okay, during the collision the ball A applied the force on the ball B and the ball B applied the force on the ball A. Okay, after the collision let us consider the velocity of the ball A becomes VA and the velocity of the ball B becomes VB. Here we use the term FAB and FBA which was explained earlier. Okay, FAB means force exerted by A on B and meaning of FBA is force exerted by B on A. Okay, so we know that the FAB and FBA which are equal in magnitude but opposite in direction. We see that the mass of the ball A is ma and the mass of the ball B is mb. Now we have to find the momentum of ball A and ball B. We also see that the initial velocity of the ball A is UA and the initial velocity of the ball B is UB, and after collision the velocity becomes VA and VB respectively. Okay, now initial momentum of ball A, we know that the formula of momentum is mass into velocity. Now we have to find the initial momentum, so we use the initial velocity. Okay, the formula of initial momentum of ball A is ma UA and initial momentum of ball B is mb UB. Okay, equation 1 and equation 2. Now we have to find the final momentum of ball A. Final momentum of ball A is ma VA. क्यों? क्योंकि final velocity कितनी हो गई, VA हो गई है. And final momentum of the ball B is mb VB आएगा यहाँ. Okay, now change in momentum of ball A. Change in momentum of ball A is also represent as delta PA. हमने देखा था कि change word को हम किससे यूज करते हैं, डेल्टा PA से यूज करते हैं. चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब चेंज इन मोमेंटम किसका ले रहे हैं, बॉल ए के ले रहे हैं, तो हम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ए. एंड वी आल्सो नो दैट द चेंज इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ ball A. Okay, final momentum of ball A is MAVA and the initial momentum of the ball A is MAUA. Now change in momentum of ball B is represented by delta PB and it can be written as MBVB final momentum of ball B minus initial momentum of ball B, MBVB minus MBUB. Okay, now
एफ बी ए मीन्स वॉट, द फोर्स एक्सर्ट बाय बी ऑन ए, यानी कि फोर्स बी लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ए पे लगा रहा है। तो अगर फोर्स किस पे लग रहा है, बी तो लगा रहा है, लेकिन लग किस पे रहा है, ए पे लग रहा है, तो मोमेंटम में चेंज भी किसके होगा, ए के होगा, ठीक है, बिकॉज फोर्स exerted by B on A. Okay, so delta P upon delta T. So हम इससे delta P की वैल्यू पुट कर सकते हैं MAVA minus MAUA, और change in time is also T, so we can write here T. Okay, now FAB means force exerted by A on B, यानी फोर्स किस पे लग रहा है, B पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, A रहा है, लेकिन फोर्स तो B पे लग रहा है, तो मोमेंटम में चेंज भी किसके होगा, B के होगा। सो वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा PB अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा PB MBVB minus MBUB, and the change in time is also T, so we can write it T. We know that from Newton's third law of motion, FAB is equal to F of BA with minus sign. That means both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. Now put the values of FAB and FBA. We get the value of FAB is MBVB minus MBUB upon T is equal to, with minus sign, the value of FBA is MAVA minus MAUA upon T. हम यहाँ देखते हैं कि दोनों साइड डिनोमिनेटर में टी टी है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ MBVB माइनस MBUB इज इक्वल टू, विद माइनस साइन, MAVA माइनस MAUA। नाउ MBVB माइनस MBUB इज इक्वल टू, विद माइनस साइन हम अंदर ले जाते हैं, तो MAVA दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो MAUA। नाउ हम VV वाली टर्म्स को एक तरफ और UU वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ माइनस का MAVA है, इस साइड आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमने यहाँ पॉजिटिव में लिख दिया MAVA प्लस MBVB, तो यहाँ पॉजिटिव में है ही सही ऑलरेडी, तो हमने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम MAUA तो है ही सही, तो MAUA ये हो गया, यहाँ माइनस का MBUB है, यहाँ माइनस का, तो इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये MBUB हो गया, ठीक है। इस समय क्या कंक्लूजन निकला, आप रिमाइंड कीजिए, MAVA क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A, MBVB क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल B, क्योंकि इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या थी, VA और VB थी, और UA UB क्या थी, इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो MAUA को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A, एंड MBUB को क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल B। तो इससे फाइनली ये कंक्लूजन निकला हमारा कि टोटल जो सिस्टम है, अगर बॉल A एंड बॉल B को हम कंप्लीट सिस्टम की तरह अगर कंसिडर करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल B, दैट मीन्स कंप्लीट सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल B, दैट मीन्स कंप्लीट सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द सिस्टम, दैट मीन्स जो मोमेंटम इनिशियली था वही मोमेंटम क्या है, फाइनल है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, इनिशियल मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, दिस इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल momentum of the complete system is known as conservation of momentum. This is the very important formula of momentum. आपको कई बार जैसे वेलोसिटी VA दे दिया जाएगा, VB गिवन रहेगा, UB गिवन रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द UA। ओके, और समटाइम आपको कभी UA दे दिया जाएगा, UB ऑल्सो गिवन, VB गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड द VA। ओके, आपको कोई भी क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज में से सारी क्वांटिटीज दे देंगे, कोई भी एक अननोन दे देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके उस क्वांटिटी को फाइंड करना है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज। Now we are trying to understand about the application of laws of conservation of momentum. First application is recoiling of gun. Okay, if we take a gun whose mass is capital M and a bullet whose mass is small m, ठीक है, initially both are at rest, जब तक हमने फायर नहीं किया है बुलेट भी इसके अंदर रेस्ट पर है और गन भी रेस्ट पर है। ओके, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, तो इनिशियली अगर दोनों रेस्ट पर है तो देयर इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। ओके, नाउ आफ्टर फायरिंग we know that the bullet moves in forward direction and the gun feels backward force in the opposite direction. Okay, हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में कि जैसे ही हम बुलेट को फायर करते हैं तो हमारे शोल्डर पे जर्क फील होता है, बिकॉज जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आफ्टर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स VB एंड द वेलोसिटी ऑफ द गन्स बिकम VG. G is for gun and B is for bullet. Okay.
Now we know that from according to laws of conservation of momentum, MAVA plus MBVB is equal to MAUA plus MBUB. That means final momentum of ball A and B is equal to final momentum of ball A and initial momentum of ball A and B. Okay, momentum remains conserved. That means final momentum is equal to इनिशियल मोमेंटम. ओके, हमने देख लिया कि बुलेट का मास कैपिटल एम, गन का मास कैपिटल एम है और बुलेट का मास स्मॉल एम है. सिमिलरली मास तो सेम ही है, लेकिन फायरिंग करने से पहले इनकी वेलोसिटी 0 थी बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट. बट आफ्टर फायरिंग जो बुलेट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन, जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद वेलोसिटी वीबी, एंड जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद वेलोसिटी वीजी. ओके, हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है. अब हम इसको इससे रिप्लेस करते हैं. वहाँ पर हमारे पास बॉल ए थी या हमारे पास गन है, वहाँ हमारे पास बॉल बी थी या हमारे पास उसकी जगह बुलेट है. ओके, सो द मास ऑफ बॉल ए, यहाँ पर क्या है, मास ऑफ बुलेट इज कैपिटल एम. ओके, हमने इससे रिप्लेस कर दिया. एंड वी is what? Va is the final velocity of the ball A. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन यूज करेंगे हम. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी है, Vg. तो हमने Vg यहाँ पुट कर दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया. नाउ द मास ऑफ द बॉल B, वहाँ यहाँ क्या लेंगे, द मास ऑफ द बुलेट. The mass of the bullet is small m and the final velocity of the bullet, the final velocity of the bullet is Vb. So we put here Vb is equal to Ma is mass of gun. Now the Ua is initial velocity of ball A, but यहाँ तो initial velocity गन की 0 है, so हमने यहाँ 0 पुट किया है, प्लस की जगह प्लस. Now the mass of the ball B, here the mass of bullet m, and the initial velocity of the bullet is 0 also. ठीक है, both the velocities are 0 initially. Okay, so we put here 0 0. Okay, and we also know that when we multiply by 0, the quantity becomes 0. So this is 0 and this is also 0. 0 plus 0 is 0, and mvg plus mvb. mvg is equal to, अगर हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो this becomes minus mvb. and if we want to calculate the velocity of gun, vg is what, vg is the velocity of gun. तो हमें क्या मिल जाएगा, minus of mvb upon capital M. Okay, vg is the recoil velocity of the gun. vg is known as recoil velocity of the gun. Here small m is the mass of the bullet, vb is the velocity of the bullet, and capital M is the mass of the gun. This equation shows that vg is in the direction opposite to vb. vg की डायरेक्शन माइनस साइन क्या बता रहा है कि vg की जो डायरेक्शन है वो vb के अपोजिट है, और हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि vb फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो vg उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ vg इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ vb. दैट इज गन रिकॉइल्स और मूव्स बैकवर्ड व्हेन द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड. दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर gun and bullet questions. Now we will take one numerical related to conservation of momentum. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second. आपको बुलेट का मास गिवन है 20 ग्राम और बुलेट की वेलोसिटी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. पिस्टल का मास, गन का मास हमें 2 kg गिवन है. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बुलेट का मास ग्राम में गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा kg में. सो m इज इक्वल टू 20 ग्राम. वी ऑल्सो नो दैट द 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 kilogram is equal to 1000 gram. Okay, and if we convert the gram into kg divided by 1000, तो 20 divided by 1000 ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू 0.10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 0.02 kg. ओके, आपको जब भी मास ग्राम में गिवन हो यू हैव टू कन्वर्ट इन kg. एंड द मास ऑफ द गन इज 2 kg और मास ऑफ द पिस्टल एक ही बात है. ठीक है, तो उसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, तो वो कितना है 2 kg है. और हमने वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को Vb से रिप्रेजेंट किया था, 150 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन Vg. ओके, अब हमने अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बुलेट और गन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया. Vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ M Vb अपॉन कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ द बुलेट, Vb is the velocity of the bullet and capital M is the mass of the gun. Now putting the value, minus M की वैल्यू है हमारे पास 0.02, Vb की वैल्यू है 150 and the mass of gun is 2. तो हमने 2 से इसको कैंसिल कर दिया, माइनस 0.01 टाइम में कैंसिल हो गया. आप इसको और सॉल्व करोगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाओगे तो एक 0 से 0 कट जाएगा और माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड हमें आंसर मिल गया. ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, इट इज़ नॉन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, और ये इंडिकेट करता है कि जो गन की जो वेलोसिटी है यानी गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि जब भी आप बुलेट को आगे की ओर फायर करोगे तो आपकी गन जो है वो पीछे की ओर मूव करेगी, इसलिए इसमें माइनस का साइन आता है.